गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रामनाथ बिहारी आज के इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर का कंसेप्ट देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा चैनल रामनाथ बिहारी नेम से है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8541996949। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9 और 10 दोनों में पढ़ना है। एक कॉमन चैप्टर है फॉर क्लास 9 एंड 10। तो आइए पहले हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो आप जानते हैं कि ऑल algebraic expressions are not polynomials. Algebraic expressions is the combination of variables and constant, as for example ax. A is constant and x is variable. It is an algebraic expression. Or 1 by x, it is also an algebraic expression because it is also combination of variable and constant. 1 is constant and x is variable. So but every algebraic expressions are not polynomials. तो पहले आज मैं यही डिस्कस करूँगा कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होंगे और कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। बट एवरी पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। तो चलिए पहले मैं पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करता हूँ। Polynomials. An algebraic expression in which power of variable is whole number only. That expression is known as polynomials. An algebraic expression in which power of variable is only whole number, that expression is known as polynomial. As for example, it is denoted by px. Polynomial is denoted by px, qx, tx, etc. Polynomial is denoted by px, qx, tx, etc. As for example, x is an algebraic expression and it is polynomial also because power of x is 1, that is whole number. Power of x is 1, that is whole number. Whole number आपको पता ही होगा 0 1 2 3 ...
It means all counting numbers together with 0 are called whole numbers. So x to the power 1, it is a polynomial because power of x is 1. 1 by x is not a polynomial because 1 by x is equal to x to the power minus 1, where minus 1 is not whole number, where minus 1 is not whole number, minus 1 is not whole number, therefore 1 by x is not polynomial. Under root x, it is also not polynomial because under root x is equal to x to the power 1 by 2 we can write, and 1 by 2 is not a whole number, so under root x is not a polynomial. 1 by x is also not a polynomial. Ax is a polynomial because x to the power 1, power of x is 1 and 1 is a whole number. 1 by ax square plus bx plus c. 1 by ax square plus bx plus c, it is also not polynomial because it can be written as ax square plus bx plus c to the power whole power minus 1. Power is not whole number, that's why 1 by ax square plus bx plus c, it is not a polynomial. So for being a polynomial, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ऑलवेज होल नंबर. पॉलिनोमियल होने के लिए हमेशा वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो वह पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वह पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट एवरी पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन. Expression means algebraic expression. X plus under root 2, it is a polynomial. Y minus under root 2, it is also polynomial. Cube root of y plus 3, it is not polynomial. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन. पॉलिनोमियल पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर होल नंबर होना चाहिए. चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ टर्म्स के बारे में. टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल के लिए देखिए, टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होता है. टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस. जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 2x लेता हूँ, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू 2x लिए, तो 2x 2 इंटू एक्स, 2x इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x, तो इट इज सिंगल टर्म. और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, इट इज ऑल्सो सिंगल टर्म. मान लीजिए आप x की वैल्यू कुछ 4 ले लिए, तो 4/2 ये 2 आया, तो ये सिंगल टर्म है. चलिए एक और एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. तो there are 3 terms, 6, x square minus 5x and 6. there are 3 terms. टर्म्स में प्लस और माइनस साइन हम लोग लेते हैं, इनटू डिवाइड नहीं लेते हैं. तो प्लस और माइनस से ही टर्म का सेपरेशन होता है. एक और एग्जांपल आप देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2. देयर आर ऑल्सो 3 टर्म्स. सी there are 3 terms but it is not a polynomial because their power of x is 1/2. 1/2 is not a whole number, so it is not polynomial.
another example you take. Px is equal to x square plus 2, x square plus 2. So terms are x square and 2. X to the power 150 and x to the power 149 plus x to the power 148 प्लस डॉट डॉट टू एक्स टू दी पावर 1। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये कितने टर्म्स है, तो आपका आंसर देखिए 1 से 150 तक है, तो टर्म्स हो जाएंगे 150। फर्स्ट टर्म एक्स टू दी पावर 150, सेकंड टर्म एक्स टू दी पावर 149, थर्ड टर्म एक्स टू दी पावर 148 डॉट डॉट टू एक्स टू दी पावर n। सो 1 से लेकर 150 तक 150 टर्म्स हुए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड हाउ टू काउंट नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अब मैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स बता। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स में हम लोग एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 2x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ 2x कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 because 2x can be written as 2 into x. So coefficient of x is 2. It means factor of x is 2 and coefficient of 2 is x. तो फिर अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसमें मान लीजिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज there is no constant with no sign, so x square means 1 into x square। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 6। It means 6 into x to the power 0. X to the power 0 is equal to 1 where x is not equal to 0 because 0 to the power 0 is equal to undefined. 0 to the power 0 is equal to undefined. तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 है और इसमें आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देयर इज नो एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। तो इस तरह से हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो आप सीखे व्हाट इज पॉलिनोमियल, सेकंड सीखे कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होता है, और फिर आप देखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं डिस्कस करता हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर terms, according to their terms. Types of polynomials according to their term. A polynomial having single term, it is monomial. Monomial, binomial, trinomial. Monomial, binomial, trinomial. Mono means one
Bi means 2, tri means 3. So we can define monomial, a polynomial having single term, a polynomial having two terms, a polynomial having only 3 terms is called trinomial. तो इसमें सिर्फ सिंगल टर्म, इसमें 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स आएंगे. तो मोनोमियल का अब हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एक्स इज ए मोनोमियल. x by 2 it is also monomial. 2x it is also monomial. Minus 2x it is also monomial. 2 it is also monomial. Okay. Binomial, a polynomial having 2 terms, only 2 terms is called binomial. As for example, x plus x by 2 or x minus x by 2 or 1 by root 2 minus 1 by 2 minus x. These all are binomial. In y also, y minus root 2, it is binomial. There are 2 terms y and minus root 2. There are 2 terms x and minus x by 2. Trinomial, a polynomial having 3 terms. Example, x square plus 5x plus 6 or 5x minus x square minus 6 or 6 minus x square minus 5x. There are 3 terms, x square, 5x and 6. There are also 3 terms, 5x, comma minus x square and comma minus 6. There are 3 terms, 6 minus x square minus 5x. There are 3 terms. So these all are trinomials. More than 3 terms, a polynomial having more than 3 terms, that is known as polynomials. Polynomials. More than 3 or more than 3 terms. Poly means many, nomial means term, in which there are so many terms, that is called polynomial. Monomial is also polynomial. Binomial is also polynomial. Trinomial is also polynomial. Okay. Polynomials, one note keep in mind, every real number is also a polynomial. Every real number is also polynomial. मान लीजिए कि आप रियल नंबर 1/2 ले लिए, ये भी एक पोलिनोमियल है. इसको भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल 0 होगा. देखिए 1/2 को 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है ये 0 है, और आप जानते हैं कि 0 एक होल नंबर है, इसलिए 1/2 पॉलिनोमियल होगा. 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है. 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू वाई टू दी पावर 0. -1/√2 इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. इसको भी हम लोग लिख सकते हैं -1/√2 इंटू एक्स टू दी पावर 0. तो इस तरह से एवरी रियल नंबर इज ए पॉलिनोमियल. तो अब जो रियल नंबर में पॉलिनोमियल होंगे उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल के साथ होंगे उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू टर्म डिफाइन करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में भी 2 पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक नॉन जीरो कांस्टेंट और एक जीरो पॉलिनोमियल. Constant polynomials. There are 2 types of constant polynomials.
नॉन जीरो एंड जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। वी कैन राइट px is equal to जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स, एक्सेप्ट जीरो ऑल रियल नंबर्स etc. So except zero all real numbers are called non-zero constant polynomials and zero is called zero polynomials। अब मैं बात करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स according to their degree, their degrees। चलिए, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डिग्री क्या होता है। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए से आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिए। अब इसमें मैक्सिमम पावर देखिए, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कितना है 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम एक और एग्जांपल देखिए, एक्स, इसमें सिंगल वेरिएबल एक्स है और इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री भी 1 होगा। 6 माइनस एक्स क्यूब, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 होगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 5, तो इसमें अब देखिए मैक्सिमम पावर 7 है, इसका डिग्री 7 हो जाएगा। तो अभी तक आप देखें कि सिंगल वेरिएबल में जो भी मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा हूँ वो सब सिंगल वेरिएबल में है। जब यही डबल वेरिएबल्स का बात करेंगे तो उसमें डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लीजिए। मान लीजिए एक्स वाई पॉलिनोमियल है, इसमें देयर आर 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और इसमें अगर आपसे पूछता है कि इसका डिग्री क्या है तो इसमें पावर को आप ऐड कर देंगे, 1 1 2, इसका डिग्री हो जाएगा 2। इन्हीं जब 2 से अधिक एक से अधिक वेरिएबल होगा तो उसमें डिग्री निकालने के लिए मैक्सिमम सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, मैक्सिमम सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। जैसे एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए इज वेरिएबल, सपोज दैट, so there 1 plus 1 2
1 1 1 2 3 1 1 1 1 4। तो यहाँ पे सम 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है। तो मैक्सिमम सम कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पर डिग्री हो जाएंगे 4। तो मैक्सिमम सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इफ पॉलिनोमियल विल बी इन द मोर देन वन वेरिएबल्स। जब सिंगल वेरिएबल में होंगे तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो अब आपको डिग्री अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। चलिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में आप दो पॉलिनोमियल्स जानते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट एंड जीरो। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लीजिए 2 है और इसका डिग्री फाइंड आउट करना है, तो इसको वेरिएबल के साथ हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0। अब एक्स टू दी पावर 0, अब यहाँ पर इसका डिग्री मैक्सिमम पावर कितना है? 0 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी रियल नंबर को, जैसे आप 1/√2 ही ले लीजिए और इसको वेरिएबल के फॉर्म में कितना लिखेंगे? 1/√2 इंटू वाई टू दी पावर 0 और एक्स टू दी पावर 0। तो यहाँ की मैक्सिमम पावर देखिए 0 है, तो इसका भी डिग्री 0 होगा। तो इसलिए आप ये बात दिमाग में रखिए, हमेशा कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल is 0 always। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल मान लीजिए px इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ आप इसको 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं, या 0 इंटू वाई टू दी पावर 10 भी लिख सकते हैं, या 0 इंटू एक्स टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं, या 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ मैक्सिमम पावर 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है। तो डिग्री तो कोई एक होगा ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। किसी भी रियल नंबर का डिग्री 0 होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है। तो आज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। उसके डिग्री के अनुसार कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल्स के टाइप्स: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, क्वेंटिक पॉलिनोमियल,
6 सेक्स्टिक पॉलिनोमियल्स। देखिए मेनली 4 ही है, 4 टाइप्स ही पॉलिनोमियल्स के मेनली डिस्कस करना है। ये 2 एक्स्ट्रा है। whose degree is 1 linear polynomial, whose degree is 2 quadratic polynomial, whose degree is 3 cubic polynomial, whose degree is 4 biquadratic polynomial, quintic whose degree is 5, sextic whose degree is 6। और इस तरह से 7 डिग्री होगा तो डिग्री ऑफ 7 डिग्री पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं। इफ डिग्री इज 8 देन 8 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जब डिग्री 9 होगा तो 9 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इस तरह से डिग्री और नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 1 देन लीनियर, इफ डिग्री इज 2 देन क्वाड्रेटिक, if degree is 3 then cubic, if degree is 4 then biquadratic, if degree is 5 then quintic, if degree is 6 so sextic, if degree is 7 degree polynomial, if degree is 8 degree polynomial। तो ऐसे ही if degree is 9 degree polynomial, if degree is n सो n डिग्री पॉलिनोमियल। जब डिग्री n हो जाएगा तो उसको n डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से n डिग्री पॉलिनोमियल तक का कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल के लिए x ले लीजिए, डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, 2 प्लस √2 प्लस x, their degree is 1 so it is linear polynomial। quadratic polynomial x square minus 5x minus 6, degree is 2 so quadratic polynomial। cubic polynomial x cube, it is degree is 3 so it is cubic polynomial। ax क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक इफ डिग्री इज 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इन लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, यानी एक अधिक होगा डिग्री से। तो लीनियर का आप जनरल फॉर्म, क्विंटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 6 होगा, सेक्स्टिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 होंगे, 7 होंगे, बट मिनिमम 1 भी हो सकता है क्योंकि x⁶ इट इज ऑल्सो सेक्स्टिक पॉलिनोमियल्स। तो इन सब में मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल हो सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 मोर देन देयर डिग्री, उनके डिग्री से 1 अधिक होगा। अब इसके जनरल फॉर्म का मैं बात करता हूँ तो px इज इक्वल टू ax प्लस b where a is not equal to 0। px is equal to x plus b, it is general form of linear polynomial। a is real number, b is also real number, a is not 0, b can be 0। देखिए यहाँ पर जो सिंपल x एग्जाम्पल लिया हूँ, अब इसमें b की वैल्यू 0 है। px इज इक्वल टू x ओनली, तो x प्लस 0 लिख सकता हूँ। अगर इससे कंपेयर कराइए तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इसका जनरल फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें देखिए 2 टर्म्स हैं और इसमें नंबर ऑफ, चलिए उसका खैर बाद में डिस्कस करूँगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0. b can be 0, c can be 0. if a is equal to 0, अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो ये टोटल टर्म्स हो जाएगा 0, सिर्फ रह जाएगा bx प्लस c जो कि लीनियर पॉलिनोमियल में है, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए तो वह किस पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप आंसर दीजिएगा लीनियर पॉलिनोमियल में। और ए और बी दोनों एक साथ अगर 0 कर दिए जाए तो सिर्फ रह जाएगा कांस्टेंट, तो ये सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 0 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसी तरह से हम लोग जनरल फॉर्म लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d प्लस cx प्लस d। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax प्लस b लिखा, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक के लिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जनरल फॉर्म a b c and d are real numbers, a cannot be 0. if a will be 0 then bx square plus cx plus d will remain and it will be quadratic polynomial. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिमिलरली देखिए, लीनियर के लिए एक्स प्लस बी लिखे, अब यहाँ 2 1 0 3 2 1 0, अब यहाँ 4 3 2 1 0। पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। यहाँ भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 1 0, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। अब ऐसे ही 20 का यहाँ पे 5 4 3 2 1 ऐसे सेक्स्टिक पॉलिनोमियल में 6 5 4 3 2 1। अब आइए n डिग्री पॉलिनोमियल्स में, तो n डिग्री पॉलिनोमियल्स का हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 है तो 4 से स्टार्ट किया हूँ, उसी तरह से डिग्री n है तो n से स्टार्ट करूँगा। a n x टू दी पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट टू a टू दी पावर 0। तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री इज n। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए n से लेकर 1 तक n होगा और a0 एक बढ़ जाएगा ये टर्म, इसलिए n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ तक आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।